Good morning, students. We are studying the chapter number 4, agriculture. So in the previous video we have taken up certain topics from this chapter, like types of farming. We have taken up primitive subsistence farming, the other name is jhuming, intensive subsistence farming. These topics are very important because in examination difference come. Okay, difference आता है and student they get confused. Intensive subsistence और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में दे गेट कन्फ्यूज. वैसे तो देखो प्रिमिटिव नाम से ही एंशियंट, ठीक है, ये पता है, बट स्टिल यू मस्ट पे मोर अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. देन वी हैव स्टडीड अ लिटिल अबाउट कमर्शियल फार्मिंग. So commercial farming mainly to earn profit. That farming we do mainly to earn profit. Okay, in this modern inputs are required. Modern inputs means HYV seeds, chemical fertilizers, etc. We have studied it. So students, there is a question. Can you give some more examples? Like they have given the example of rice here. Can you give some more examples of crops which may be commercial in one region and may provide subsistence in another region? You can find out, or you can just read the chapter, and there in the chapter you will understand about major and minor crops. Then you can get the idea of this question. Now students, plantation. If you remember when we studied the chapter of history, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी प्लांटेशन वर्ड था ना, बट वो जोग्राफिकल टर्म्स में नहीं था, वो हिस्टोरिकल टर्म्स में हमने उसको पढ़ा. बट दैट प्लांटेशन एंड दिस प्लांटेशन बोथ आर सेम. प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. ओके, सो प्लांटेशन इज अ टाइप of commercial farming. Plantation is also done to earn profit. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. बस क्या फ़र्क है इसमें कमर्शियल और प्लांटेशन में, कि प्लांटेशन में एक सिंगल क्रॉप को ही एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, राइट. अब आप देखो टी गार्डन्स वाला हमने उसमें पढ़ा था ना हिस्ट्री में, कि टी गार्डन्स में वो वर्कर्स फंस जाते थे, प्लांटेशन वर्कर्स. सो टी गार्डन मीन्स टी को ही ग्रो कर रहे हैं वो एक बहुत लार्ज एरिया में, स्टेट में. दैट इज़ प्लांटेशन. The plantation has an interface of agriculture and industry. Means जो plantation है both industry and agriculture दोनों चीज़ें हैं वो. Plantation cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. देखो migrant laborers इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं. That's why it is mentioned over here also कि जो plantation है, सबसे पहली बात तो it covers a very large area. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इट नीड्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. पैसा भी इसमें बहुत इनपुट करना पड़ता है पहले. ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. You can see in the picture also banana plantation in southern part of India. Then tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. One more picture is there, you can see bamboo plantation in northeast. अब northeast जो हमारी states हैं वहाँ पे bamboo plantation it is taken up as a plantation crop. Since the production is mainly for market, a well developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of plantation. तो देखो प्लांटेशन क्या है, मेनली फॉर द मार्केट है. तो उसके लिए क्या चाहिए कि रोड्स भी प्रॉपर चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट भी हो सके और बाकी की फैसिलिटीज़ भी रिक्वायर्ड हैं. ओके, तो प्लांटेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए. देन वी हैव क्रॉपिंग पैटर्न. ये देखो मैंने ये लिखा हुआ भी है, रबी, विंटर, अक्टूबर, दिसंबर, सोइंग फॉर एग्जांपल वीट. ठीक है, ये मैंने लिखा है. ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है बेटा, कि इन व्हाट पैटर्न क्रॉप्स आर बीइंग सोन एंड हार्वेस्टेड. क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जब हमारा मन करे हम कोई भी क्रॉप लगा दें. चलो जी अब हमारा गर्मी आ गई है, चलो भाई हम तो वीट लगाएंगे गर्मियों में. इट्स नॉट लाइक दैट. Proper pattern is there according to the requirement of a crop. We have chosen the seasons and we have named the seasons. Rabi, Kharif and Zaid. We have named the seasons.
सो क्रॉपिंग पैटर्न में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. So we all are aware of the physical physical features जो बहुत ज़्यादा diverse है. Even culture भी बहुत ज़्यादा diverse है इंडिया का, right? These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. Various types of foods and fiber crops, vegetables, fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. So, in the country, crops में भी diversity है. देखो क्या क्या लगाते हैं. Fiber crops, food and fiber crops, vegetables भी, fruits भी, spices भी, condiments, so many things, right? So, crops grown in the country. India has 3 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. Very important question ना आपके पास ऐसे आता है कि वीट के लिए अगर आपको पता है ना कि कौन सी क्रॉप कब लगाई जाती है, तो जो मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर बिल्कुल क्लियरली कर लोगे. ठीक है. वो पूछते हैं कि वीट के लिए ना क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसा टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कैसा चाहिए. ठीक है. अगर आपको पता है, और सोइंग कब होती है. अगर आपको पता है कि वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है, फाइन, और रबी क्रॉप तो सर्दियों में ही लगाते हैं, तो आपको ये भी क्लियर होगा कि सर्दियों में तो बारिश कम होती है, इसका मतलब वीट को बारिश कम चाहिए होती है ना, राइट. और ये भी आपको पता है कि हार्वेस्टिंग वीट की हम कब करते हैं, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में करते हैं. तो मार्च अप्रैल में क्या होता है, सर्दियाँ ख़त्म होती है, तो शाइनी अच्छी अच्छी धूप होती है उस टाइम पे, बारिश भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. तो आपको पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. थोड़ा सा बस अपने आस पास की तरफ आपने पूरा प्रॉपर ध्यान देना है. ठीक है. एवरीथिंग इज़ ईजी. अब देखो आजकल आप वो कॉर्न्स खा रहे होंगे, ठीक है, जिसको मक्की भी बोलते हैं. तो कौन सा सीज़न हो गया उसके लिए, खरीफ सीज़न हुआ ना. और रेनफॉल कैसे चाहिए होगा, देखो मानसून्स में हुई है तो रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होगा, राइट. और टेम्परेचर, गर्मी भी है ना आजकल, सो ह्यूमिड टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, राइट. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important, अब देखो, I have noticed this thing. One time I was traveling. अब हिमाचल भी था उसमें, ठीक है, पंजाब का एरिया भी आ रहा था, फाइन. अब आपको पता है हिमाचल में ठंड ज़्यादा पड़ती है, पंजाब में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है. तो वहाँ पे बैसाखी अप्रैल में होती है, सबको पता है ना. वीट की हार्वेस्टिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ तब तक वीट को बहुत अच्छी धूप लग जाती है. तो जैसे ही उस पर धूप पड़ती है वो गोल्डन कलर का हो जाता है, लाइक गोल्ड, है ना. बट हिमाचल में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, गर्मियाँ थोड़ा सा लेट आती है ना हमारे यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे क्या था, क्रॉप्स, वो जो वीट थी वो ग्रीन थी, ठीक है, वो ग्रीन थी. देन आई नोटिस्ड कि देखो अप्रैल टू जून अगर सीज़न चल रहा है तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जहाँ पे टेम्परेचर लो है वो जून तक पहुँचती है बात. ओके. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. सो ये क्या है, रबी क्रॉप्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर. अब देखो मस्टर्ड, सरसों होती है, सरसों का साग कब खाते हैं, सर्दी में ही खाते हैं. और मटर कब आती है, वो भी सर्दी में आती है. तो इससे आपको थोड़ा सा ना अपना, मतलब अगर आप माइंड ओपन करके चलो ना तो बहुत सारी चीज़ों को तो आपको आइडिया ऐसे ही हो जाएगा कि जो सर्दी में आ रही है वो रबी क्रॉप होगी ऑब्वियसली. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal, Jammu, Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. So ठीक है. Then availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. अब देखो वाटर तो चाहिए, तो सर्दियों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण रेनफॉल होता है, दैट रेनफॉल इज़ यूजफुल फॉर दीज क्रॉप्स. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above-mentioned Rabi crops. So देखो जो Green Revolution हुआ था, Green Revolution was taken up by Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and Rajasthan.
सो उसमें क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन में नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, सो दैट द जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। नहीं तो एक बार तो हमारी कंट्री में भूखमरी जैसे हालात हो गए थे पुराने टाइम में। That's why this green revolution is introduced. So students, up to here only we will study today. Revise the chapter thoroughly. Thank you students. Have a nice day.